So a very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का सेशन like I said कि डॉक्टर परवेज ले रहे हैं from the physioactive team and today's topic is on balancing exercises and I would now directly hand over the mic to him so that he may begin the session. So Dr. Parvez आप start कर सकते हैं and all the best. Thank you, Dr. Midar. So, very good morning to all. And today topic is the balance training. So, there are two types of balance, the static and the dynamic. और हम दोनों को there are some exercise for the static balance and some exercise for the dynamic balance. तो हम दोनों की एक्सरसाइज करेंगे different for the 3 or 4 exercise of each one. Okay. So let's start with some a little bit of warm up. Then go into the first we do the static balance exercise. Okay. So for the warm up, just stand up, all of you. So just start from the upper body to the lower body for the warm up. So how to do it? Just rotate your shoulder clockwise. 3, 4, 5, and 5 this side. 1, 2, 3, 4, 5. Now interlock your fingers and stretch up, breathe in and relax. Again, interlock your fingers, stretch up, breathe in and relax. 2, we do this one 5 times. 3, 4, the last 5. Now hands आप यहाँ पे रख सकते हैं and just turn right side and the left side. Again on the right and on the left. 2, 3. We do this one again for the 5 times. 4 and the last one and 5. Now come to the lower body. For the lower body, just stretch. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, let's start with the exercise. So first exercise for the static balance. Static balance का मतलब ये है कि जब आप खड़े हुए हैं या जब आप बैठे हुए हैं उस टाइम पर आपका बैलेंस क्या है. Okay, so this is called static balance. Static का मतलब एक ही जगह पर और बैलेंस का मतलब अपने बॉडी को बैलेंस में. तो जब आप एक ही जगह पर हैं लाइक स्टैंडिंग, तो उस टाइम पे आपका बैलेंस कैसा है उसको इम्प्रूव करने के लिए. एंड द डायनामिक बैलेंस इज जब आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, सपोज वॉकिंग एंड फ्रॉम सिट टू स्टैंड अप, लाइक अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं और आप उठ रहे हैं तो उस टाइम पर आपका बैलेंस क्या है. सो दिस इज जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है दैट इज द डायनामिक बैलेंस, और जहाँ पर आपकी बॉडी स्टिल है एक जगह पर है that one is the static balance. Okay, so dynamic and the static. So first start with the static balance. For the static, just stand like this. Okay, now just move your head
राइट इन द लेफ्ट साइड, और आंख को एक एक जगह पे फोकस करके करना है. सो जस्ट फोकस ऑन वन पॉइंट, एनी पॉइंट, एंड मूव योर हेड राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड. सो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि मैं कहाँ पर फोकस करने जा रहा हूँ. So this is the spot. ओके, और ये मैंने मार्क कर लिया है. दिस इज द मार्क. नाउ so just stand like this and focus here and move your head right and the left and just stand still. आप अपने बॉडी को मूव नहीं करना. अगर बॉडी आपकी मूव हो रही है सो जस्ट मेक श्योर कि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आनी चाहिए आपकी बॉडी. ओके, सो फोकस ऑन दिस पॉइंट, स्टैंड हियर एंड मूव. और स्टैंड कैसे, जो आपके फीट है, जो आपके फीट है वो एकदम क्लोज, फीट वेरी क्लोज, एक दूसरे के पास में, ज्यादा दूर नहीं, दूर पे नहीं रखना, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज. फोकस देयर एंड मूव योर हेड राइट एंड द लेफ्ट साइड. 2 3 4 and 5. Then take rest. It's only 5 times and take rest. ओके, सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आपको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. द सपोर्ट इज, आई एम टेकिंग सपोर्ट ऑफ द चेयर. आप किसी की कोई सा भी, जैसे टेबल है या चेयर है या वॉल है, आप किसी का भी सपोर्ट ले सकते हैं. तो सपोर्ट अगेन फेस दिस साइड, और आप यहाँ पे एक हाथ इस पे रख सकते हैं जब आप बैलेंस. नाउ द सेकंड एक्सरसाइज, आपको एक लेग को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ. लिफ्ट वन लेग अप. Again, see here, just lift one leg ऊपर की तरफ ऐसे. Okay, and focus on that point, and then again rotate your head right side and the left side. If you need support, तो आप एक फिंगर या 2 फिंगर से चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं. अदरवाइज you have to do without support. आपको ये विदाउट सपोर्ट करना है. So 5 times rotate your head right in the left side and then change your leg. Again rotate. 1 2 3 4 and 5. So focus on one point and rotate your head right and the left side. So this will improve your balance. Okay, now just take rest a little bit. You can sit down, take rest. Okay, now the next one, and the next exercise. सेम एक्सरसाइज है, आपको पॉइंट करना है उसी जगह पर फोकस करके, और राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड मूव करना है अपने हेड को, बट योर लेग पोजीशन will be like this. So just see here.
So your leg, one leg forward and one back. ओके सो कोई भी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट। जो दोनों का फुट है वो सामने की तरफ फेस करना चाहिए, सामने की तरफ। ऐसा नहीं जो आपके फुट है, जो आपके फिंगर्स है, जो आपका एंकल है, वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, दोनों को सामने की तरफ। ओके, और इसी पॉइंट के सामने बिल्कुल खड़े होना है। हाथ को यहाँ पर या अपनी कमर पे रख लीजिए। देन अगेन मूव राइट एंड लेफ्ट। इसमें भी आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं अगर आप डिसबैलेंस हो रहे हैं। तो सपोर्ट एनीथिंग लाइक चेयर, टेबल, वॉल, तो किसी भी चीज का आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो 5 टाइम्स, जैसे मैंने भी लेफ्ट लेग को आगे रखा हुआ है, सो आई एम डूइंग 5 रोटेशन, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड मैं रोटेट करूंगा हेड को। 3 4 एंड 5। ओके, नाउ 5 टाइम्स लेग को चेंज करके, मैंने भी राइट लेग को आगे रख लिया है और लेफ्ट वाला पीछे। अगेन फोकस सेम पॉइंट और रोटेट। 1 2 3 4 and 5 and take rest. Okay, so this is all the example of the static balance कि आपकी बॉडी एक ही जगह पर है, वो मूव नहीं कर रही है, and you are trying to balance your body with a certain exercise. Okay, now the next one. अब जो हम नेक्स्ट वर्क करने वाले हैं उसमें आपकी बॉडी डायनेमिक में रहेगी। डायनेमिक मीन्स वो मूव करे। ओके, सो मूवमेंट के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, लाइक 4 और 5 स्टेप वाले स्टेप का एक स्पेस हो। तो हम थोड़ी सी वॉकिंग करेंगे और वॉकिंग के साथ अपने बॉडी को बैलेंस करने की एक्सरसाइज करेंगे। तो हाउ टू डू इट मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, तो कैसे करना है। ओके, तो 3 और 4 स्टेप आपको आगे जाना है, मूव करना है। तो एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां पर आप 3 to 4 स्टेप आप चल सके और आप अपने हेड को कहां पर मूव करेंगे। सो रोटेट योर हेड टू वन साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, डजंट मैटर। तो एक तरफ आप अपने हेड को मूव करेंगे। तो अभी मैं लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ। मूव का मतलब रोटेट करना। मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, हेड को लेफ्ट साइड की तरफ, एंड आई एम ट्राइंग टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको एक सीधी लाइन पे चलना है। ओके, so stand here, rotate one side, right or left, and walk. 3 steps forward and 3 back. 3 steps forward, 1 2 and 3 and 3 back. So you feel, आपको फील होगा कि your balance, body balance is little bit of disturbed. So the exercise is नेक को रोटेट रखना है एंड ट्राई टू बैलेंस योर बॉडी। ट्राई टू बैलेंस योर बॉडी। आप जितना रोटेट कर सकते हैं
तो गो 3 स्टेप आगे की तरफ एंड 3 स्टेप पीछे की तरफ. दिस इज 1 एंड डू इट 5 टाइम्स एंड डू इट 5 टाइम्स. फिर इसके बाद हम राइट साइड की तरफ लेग को मूव करेंगे. राइट साइड लेग को मूव करके अगेन वी वॉक and work for the 5 repetitions. So 5 times repeat करना. Stand here, one side leg, 1, 2, 3, and back. 1, 2, 3. Wait, 1, 2, 3, and back. 1, 2, 3. One, two, back, 1, 2, 3. Okay, forward and back. So 5 times the right side. 5. Okay. Now take rest. 5 times दोनों तरफ कंप्लीट करने के बाद टेक रेस्ट. ओके तो किसी ने चैट बॉक्स में पूछा कि जस्ट शो योर फीट व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइज. आई थिंक अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा. तो स्टैंड लाइक दिस एंड रोटेट टू वन साइड. 1, 2 and 3 then come back. 1, 2 and 3. Okay. So 3 steps forward and 3 back. तो आपको एक लाइन पर, एक सीधी लाइन पे चलना. जस्ट इमेजिन कि आपको एक सीधी लाइन है और यू आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो जैसे हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड हेड को टर्न करके वॉक किया है, सेम एक्सरसाइज आपको हेड को ऊपर करके वॉक करना है. सेम एक्सरसाइज है बट द पोजीशन ऑफ योर हेड अप ऊपर की तरफ वॉक. So this is all the exercise. A little bit you feel a disbalance. तो मेक श्योर कि आपके पास कुछ ऐसा चीज हो जैसे टेबल हो या चेयर हो और वॉल जिस पर आप थोड़ा सा सपोर्ट ले पाए जब आप वॉक कर रहे हैं. तो वॉक अगर आप डिसबैलेंस हो रहे हैं तो बैलेंस योरसेल्फ with the help of anything like chair or table or wall, then again walk. Okay, so let's start. Stand and look up and walk. 1, 2 and 3 and come back. Okay, so 3 steps forward and 3 steps back. So do 5 times. Again, 1, 2, 3 and back. 1, 2 and again look up. 1, 2, 3 and back. 1, 2 and go again. So complete 5 times and take rest.
ब्रीथ 5 टाइम्स एंड टेक रेस्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो जस्ट टेक रेस्ट। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम ऑन द चेयर, यू कैन यूज अ चेयर और बेड। तो बैठ कर आपको खड़े होना है, बट आपको अपने हेड को रोटेट करना है राइट साइड, और यू कैन रोटेट टू द लेफ्ट साइड। See here, you are sitting on a chair and rotate your head to one side. So suppose I am rotating to the left side. हाथ आप कमर पे रख सकते हैं, और you can use, अगर आप थोड़े से डिफिकल्टी फील कर रहे हैं खड़े होने में, तो you can use your hand. Otherwise हाथ कमर पे रहेगा and try to stand up and sit up. कंटिन्यूअस आपका जो हेड है वो एक तरफ रहेगा, राइट साइड में और या लेफ्ट साइड। ओके, जस्ट गो अप एंड डाउन, गो अप एंड डाउन। सो डू 5 टाइम्स ऑन ईच साइड, राइट और लेफ्ट। हेड वन साइड, सिर्फ एक तरफ ही देखना है। जब आप नीचे बैठे तो भी, when you sit down, continue rotate, keep rotating your head to one side. अगर आपका हेड आगे की तरफ आ रहा है या आप आगे की तरफ देख रहे हैं, that's mean you are lack of balance, आप में बैलेंस की कमी है, द डायनामिक बैलेंस। तो मेक श्योर कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, एनी साइड, राइट और लेफ्ट, जिस तरफ आपने रोटेट किया हुआ है हेड को। So do 5 times on each side. Sit down and stand up. And do it slow. बहुत ज़्यादा कोई फास्ट नहीं करना, do it slow. Take rest again for the 20 or 30 seconds. Again, we go for the next exercise. So next one again, sit to stand, but your head should be up, ऊपर की तरफ, आपको ऊपर की तरफ देखना है, और बैठ कर खड़े होना है, and then again sit down. So look up and sit down. 1, 2, 3. So only do 5 times. Continue, look up. अगर आप नीचे बैठते समय आगे की तरफ आपका हेड जा रहा है, तो या आप आगे की तरफ देख रहे हैं, डेट्स मीन कि आपका जो बैलेंस है डेट वन नीड टू इम्प्रूव, उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो डू इट स्लो, कोई फास्ट नहीं करना है, बट ऑलवेज लुकिंग अप, ऊपर की तरफ ही देखना, नो मैटर कि आप कितना स्लो कर रहे हैं। ओनली दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर बैलेंस।
नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसके 2 पार्ट्स हैं। अपने बॉडी को मूव करना है, not only your lower body but the upper body also. So lower body, upper body and balance your body means जब आप मूव कर रहे हैं तो आपका जो बॉडी बैलेंस है वो मेंटेन होना चाहिए, एंड द मूवमेंट ऑफ योर लोअर बॉडी, लेग एंड योर हैंड. ओके, so how to do it? Stand, एक लेग को राइट और लेफ्ट, अगेन कोई सा भी आप ले सकते हो, मूव करना है. सपोज मैंने अभी लेफ्ट लेग को मूव करा एंड योर राइट हैंड उसको मूव करना है आपको लेफ्ट साइड की तरफ, एंड देन कम बैक. ओके, एंड फोकस, आपको फोकस कहाँ पे करना है? फोकस ऑन योर राइट हैंड. अगर आप लेफ्ट लेग को पहले मूव करें, so I am moving my left leg up, left leg forward, and the right hand, and I am focused on my right hand, and come back. So this is one. Okay. Now right leg forward, and left leg rotate, and focus here, and come back. So you can see this is how difficult this exercise. आपका जो बॉडी है वो डिसबैलेंस होगा, सो मेक श्योर कि आपका जो बॉडी है वो बैलेंस में रहेगा. सो राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन, इसमें राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन मींस राइट लेग लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग राइट हैंड. सो राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन, इसको कॉम्बिनेशन में करना. तो एक बार मैं आगे की तरफ से दिखा रहा हूँ. मूव एंड आपने इसमें अपने बॉडी को अच्छे से बैलेंस करना है, और जो आपका स्टेप है, दैट स्टेप शुड बी अ लिटिल बिट लॉन्ग. ऐसा नहीं कि आप इतना ही रखें, शुड बी लॉन्ग. एंड रोटेट. Right, again left side leg, go forward, rotate your body, focus on your hand and come back. Right leg, focus on your hand. So do it 5 times on each side. स्लो करना है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं, अच्छे से करिए. एंड इसको एक फ्लो के साथ करिए. डोंट डू लाइक कि आपने लेग आगे कर लिया देन इसको रोटेट देन कम बैक. सो जस्ट अ फ्लो कि आप राइट लेग, आप लेग और हैंड को एक साथ मूव करें, एक साथ. Okay. So do it slow. Now sit down. और ये एक्सरसाइज एक बार फिर से करेंगे, सेम एक्सरसाइज. तो जब आप रेस्ट ले रहे हैं उस टाइम पे आपने डीप ब्रीथ करना, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. So that will improve your recovery a little bit more faster. हेलो, Okay. So नमस्ते. same exercise, but this time
हम इसको 3 बार करेंगे ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड। Stand here and start. Do it slow and just stay here. आपने अगर एक बार बॉडी मूव कर ली है या रोटेट कर ली है तो you can stay here for the 2 or 3 seconds, then come back. ऐसा नहीं कि आपने ऐसे किया जल्दी और जल्दी से वापस। That will not improve your balance. The movement will be slow. आप जितना स्लो कर सकते हैं। When you do slow, then you feel कि आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है बैलेंस करने के लिए। अगर आप जल्दी से गए और जल्दी से वापस आ गए तो बॉडी उतनी जल्दी कैपेबल ही नहीं होगी अपने बॉडी को बैलेंस में लाने। ओके, तो डू इट स्लो। टेक 1 2 right and left combination, right side and the left side. ओके, सो इसके बाद हमारी एक लास्ट एक्सरसाइज है आज की। We're going again for the dynamic balance, और वो हम करेंगे चेयर पर बैठकर। So take a chair. So जैसे आपने इस एक्सरसाइज में अपने बॉडी को रोटेट करा था राइट और लेफ्ट साइड, सेम हम करने वाले हैं। राइट साइड और लेफ्ट साइड अपने बॉडी को रोटेट करें। एंड व्हेन वी रोटेट, जब हम फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंड अप, जब हम ट्रांजिशन करेंगे सिट टू स्टैंड, तो एक बार आप लोग अच्छे से देखिए हाउ टू डू इट। हाथ को आप साइड में रख सकते हैं, साइड में रखना है एंड फोकस ऑन योर हैंड, राइट और लेफ्ट साइड, किसी भी साइड। ओके, नाउ स्टार्ट स्टैंडिंग अप एंड स्टार्ट रोटेटिंग योर बॉडी। सो just and down 1 again। आपने फोकस हाथ पे रखना है, फोकस ऑन योर हैंड, स्टैंड अप and sit down 1 to do 5 times 2 3 4 and the 5. So 5 times on the right side, 5 on the left. Do it very slow. बहुत ज्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं, जितना स्लो करेंगे उतना अच्छा। Again, change your side. 1 2 3 तो जब आप
रोटेट कर रहे हैं बॉडी, सो अच्छे से रोटेट, कंप्लीट रोटेशन। एंड 4, लास्ट वन, so that's it. This is all the exercise for the static and the dynamic balance. Okay, so anyone have any questions related balance? So you can ask. Dr. Anurag, you are here? जी. So done for today. Okay. ये मूव दोनों साइड करना है? हाँ, रोटेट दोनों साइड करना है, राइट एंड लेफ्ट. ओके. Dr. Anurag, I have a question for you. जी जी. कल मुझे सेकंड शॉट लगा है, तो should I be exercising for 1 or 2 days or should I not be exercising? कब लगा है मैम सेकंड डोज? कल. तो अभी 1-2 दिन तो रेस्ट करिए, अपने आप को ज्यादा एक्सर्ट मत करिएगा. एक दिन डॉक्टर तो बोलते हैं 1 हफ्ता मत करो एक्सरसाइज. पहले स्टार्टिंग के 2 दिन तो देखिए कि अगर फीवर तो नहीं आता या कोई बॉडी में क्रैम्प तो नहीं पड़ते या दर्द तो नहीं होती. अगर ठीक लगता है तो धीरे धीरे यू कैन स्टार्ट, बट वेट करना पड़ेगा थोड़ा टाइम. ओके, थैंक यू. अबे फ्रीज ही हो गए हो. So, if anyone else has any questions, आप डॉक्टर परवेज से पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, अदरवाइज सेशन खत्म करते हैं यहीं पे. डॉक्टर प्रवेश, इसको ऐसा करने से नी में बड़ी पेन हो रही है. ओके, सो जो सिट टू स्टैंड वाली एक्सरसाइज थी आई थिंक. हाँ, वो करी है ना, उससे ज्यादा पेन हो रही है. हाँ, तो वो अभी आप नहीं करना अगर नी में ऐसा कुछ दिक्कत है. अदरवाइज जो और सारी एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं. ओके. और अभी के लिए, हाँ, अभी के लिए जस्ट टेक रेस्ट और यू कैन अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ हीटिंग. ओके. आप हीट यूज कर सकते हैं अबव द नी के ऊपर जहाँ पे भी आपको पेन, तो थोड़ा से उससे आराम मिलेगा. ओके. ओके. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सब चुप कैसे हो गए? तभी तो मैंने शुरू किया. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ये ये लता जी, जिनको चक्कर आ रहे हैं ना, प्लीज एक काम करो, तरबूज या खरबूजा अगर घर में है तो उनको थोड़ा सा खिला दो काट के. किसको आ रहे हैं? स्नेहलता जी, हाँ स्नेहलता जी, कल आपने बहुत 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 सुंदर बोला. थैंक यू वेरी मच. इतना कुछ नहीं था, पर बस मन से बोलती हूँ, जो बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ. मन प्रसन्न हो गया, एकदम मन प्रसन्न हो गया. थैंक यू वेरी मच. ईश्वर जो बुलवाता है वो बोल देती हूँ, पता नहीं मुझे नहीं पता क्या. सच में मैंने उनको स्पीच भी भेजी थी ना, तो मैंने वही कहा, मैं उस समय जो मन में आएगा बोल दूं कि प्लीज अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना. नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सुखद था. क्योंकि सारे काम हम ईश्वर के बिना कर ही नहीं सकते. यही आपकी सबसे अच्छी बात लगती है हमें, ये जो बात आपने कही, बहुत मैं भी इसमें मानती हूँ, अच्छी बात मानती हूँ. हर इच्छा से सब कुछ होता है. बिल्कुल. मैं तो सच्ची बता रही हूँ, जैसे आप उनको चक्कर आ रहे हैं, मेरे दिमाग में मुझे लगता है ईश्वर ने बोला और मैंने बोल दिया. मैंने नहीं बोला, ईश्वर ने बोला, बोल दिया. किसको चक्कर आ रहे हैं?
जिसका उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ को चक्कर आ रहे हैं, मैंने उनको ये बोल दिया कि तरबूज और खरबूजा अगर घर में है तो काट के खिला दे उनको बस। उससे चक्कर बंद हो जाते हैं? बिल्कुल बंद हो जाएंगे 100%। अच्छा, वेरी गुड। अब एक सेशन आपको लेना है स्नेहलता जी, तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ ऐसे वीडियोस बनाऊं जिसमें बिल्कुल आपको अपने अंदर से हील अप हो बॉडी। हाँ क्योंकि बिल्कुल, हमारे अंदर वो शक्ति है जो हम हर एक के अंदर है, मेरे अंदर नहीं है, हर एक के अंदर है वो शक्ति। वही जागरूक नहीं करते ना, वही सोई पड़ी है। ये तो मैं भी बहुत, जब से मैंने ज्वाइन किया मैं भी यही बोलती हूँ कि अपने अंदर की शक्ति को जगाओ, अपनी अंदर की कुंडलिनी को उठाओ, तभी आपको सब गाइडेंस अपने आप मिलती है। यू डोंट हैव टू गो टू एनीवन। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बार बार कह रही हूँ, ईश्वर ने हर एक के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति भरी है, इतनी ज्यादा शक्ति भरी है कि आप स्वयं आपको नहीं कर सकते। हम मोह माया में और दिखावे में और दुनिया की ये दुनियादारी में इतना पड़ जाते हैं कि उस चीज को तो भूल ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो असलियत है उसको अपनाते नहीं है, और जो नकली चीजें बाहर है उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होके और सब अपनी गड़बड़ करी हुई है सबने। यही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप 100%। अच्छा अनुराग जी, नहीं है डॉक्टर साहब। वाइंड अप। जी जी सर। डॉक्टर अनुराग साहब, एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। जी जी सर। अच्छा, मैं आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक ऑफ हो गया आपका, और माइक दोबारा ऑन करिएगा। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बीच में स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। अभी आवाज आ रही है? जी अभी अभी आ रही है, बीच में फ्रीज हो गई थी। एक्चुअली क्या है कि मैंने दोनों डोज ले लिए। ओके। तो जब पहला डोज लिया था तो अलग अलग डॉक्टर के मैंने अलग अलग विचार कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ। तो मैंने डॉक्टर को पूछा तो उसने कहा कि आपको दुखता है? मतलब नहीं। तो बुखार है? मतलब नहीं। तो करो यार, एक्सरसाइज करो, खाओ पियो, मजे करो, आराम करो। तो उसने चालू करवा दिया मेरा, तो मैं सब करता रहा, मेरे को कुछ हुआ भी नहीं। दूसरा डोज में भी ऐसा हुआ, दूसरे डोज में भी बुखार भी नहीं हुआ, दर्द भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं तो चालू हूँ, 3 दिन पहले लिया, अभी कर रहा हूँ रोज आपके साथ सुबह सुबह एक्सरसाइज। कुछ नहीं हो रहा मेरे को। तो ये अलग अलग आदमी के शरीर की भी हो सकती है कि बॉडी का भी कुछ हो। सर, वैक्सीन सबको सेम तरह से इफेक्ट नहीं करती है। सबकी बॉडी का, सबकी इम्यूनिटी का अपना अलग अलग तरीके का रिएक्शन होता है। किन्हीं 2 लोगों में हमें सेम सिम्टम्स या सेम उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे हमें लगता है कि बिना किसी आफ्टर इफेक्ट्स के अपने आप अपने खुद के टाइम फ्रेम के हिसाब से वैक्सीन काम करते हैं कि वहाँ वो भी ठीक है, जिसको नहीं करती वो भी ठीक है। दैट इज देयर ओन इम्यूनिटी ट्राइंग टू रिएक्ट टू इट। मेरी इम्यूनिटी कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, मैं उसका अंदाजा खुद लगा सकता हूँ अपने उसके हिसाब से। इस तरह से मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है वैक्सीन के प्रति। मेरा अभी पहला ही डोज हुआ है, बट मेरे पहले डोज के बाद आई वाज अ बिट डाउन फॉर 2-3 days, बट ठीक है, आई समहाउ मैनेज इट। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा नहीं होता कि फिजिकल एक्सर्शन से अपने आप को एकदम ही दूर रखें। थोड़ी बहुत तो करती रहनी पड़ती है, थोड़े बहुत तो हाथ पैर चलते रहने चाहिए। और एक फायदा और लेता हूँ मैं, जब आपके साथ जब एक्सरसाइज करता हूँ तो आप सिखाते हो, तो मैं देखिए, आपने देखा होगा मैं खिड़की के पास बैठा हुआ हूँ। जी जी। खिड़की से मेरे को वो धूप आती है, धूप भी आती है, तो मेरे को इससे विटामिन D3 भी मिलती जाती है साथ साथ। बिल्कुल। तो मैं हमेशा खिड़की पर बैठ के करता हूँ, तो खिड़की से बड़ी अच्छी धूप आती है और यहाँ एक्सरसाइज भी हो जाती है। ये फायदा जरूर मिलता है। If anyone else has any questions, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन खत्म करते हैं यहीं पे आज का। डॉक्टर अनुराग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनुराग, कल आपसे बात हुई थी, मैं निर्मल कक्कड़। जी जी सर। एंड माय वाइफ गीता कक्कड़।
जी जी हाँ जी बात हुई। I wanted to show my face. चलिए, ग्लैड टू सी यू सर। हाँ, कल बात हुई थी आपसे बट कैमरा ऑफ नहीं था। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। Thank you, sir. गुड टू मीट यू सर। जी सविता मैम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ डॉक्टर अनुराग, आज मेरा सेकंड है। आ रही है आवाज? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, फर्स्ट के बाद तो मेरे को 2-3 दिन बहुत फीवर नहीं था, लेकिन फीवर वाले सिम्टम्स, बॉडी एक बहुत था। अभी कुछ प्रिकॉशंस? सेकंड डोज हो गया आपका? नहीं, आज है अभी। आज है? हाँ, 11 o'clock। तो लगवा के आइए, आधा घंटा वहाँ ऑब्जर्वेशन में बैठिएगा। उसके बाद भी एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स और सो ज्यादा काम मत करिएगा, बैठ जाइएगा, आके आराम से रेस्ट करिएगा। ये गलती मैंने यही करी थी। जब मेरी फर्स्ट डोज लगी, मैं टिक के नहीं बैठा, मैं उसके बाद भी मैं मीटिंग पे मीटिंग, काम सब करते रहा, तभी 4 दिन मेरी खुद की हालत खराब रही थी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा बाकी लोग को बता दें। फिर नेक्स्ट डे सेशन भी सब कुछ होता है ना, तो मेरे को तो वैसे ही टाइम नहीं मिला उस चीज के लिए। जितना हो सके पहले आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के बाद यू गिव योरसेल्फ रेस्ट फॉर अबाउट 2-3 आवर्स। उसके बाद धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके अपना जो भी एक्टिविटी है शुरू करिए। बट देन अगेन, अगर लगता है कि फीवर 100 से ऊपर जा रहा है तो नहीं, फिर फीवर नहीं था बस। अगर लगे तो, मेरा मतलब अगर लगे तो उस टाइम पे फिर कुछ मत करिए, फिर बैठ जाइए। थर्मोमीटर में नहीं आ रहा, लेकिन बॉडी को ऐसा हाथ लगाए तो बहुत गर्म रही। मैं मीटिंग से निकल के वापस आया, नेक्स्ट डे सेशन था, मैं रात को उठा, मेरे को 104 बुखार हो रखा था। मैं कहा अरे, इंजेक्शन लगाने के बाद 104 बुखार हो जाता है कई बार, क्या करें। नहीं, रीडिंग नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा गर्म हो गई। देर तो रहती है। मैंने बताया ना, वो हमारी इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, आपको आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे हैं, दैट मींस आपकी इम्यूनिटी अच्छी तरह काम कर रही है। बिल्कुल। अच्छा। बट दैट आल्सो डजंट मीन कि जिसकी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही उसका कुछ भी काम नहीं कर रही, ऐसी बात नहीं है। बॉडी सबकी अपनी अपनी तरह से अडेप्ट कर लेती है उस चीज के। वैक्सीन का एक्चुअल कितना इफेक्ट पड़ा है नहीं पड़ा है, वो तब पता लगता है जब बॉडी उस पैथोजन के कांटेक्ट में दोबारा आती है, और वो कब आती है हम नहीं बता सकते। नहीं, ये भी दूसरे जगह से अरेंज किया है, जो हॉस्पिटल में पहली बार लिए वहाँ अवेलेबल नहीं है। मैम स्टॉक बड़ा लिमिटेड है इस टाइम पे। प्रॉब्लम तो सभी को हो रखी है। कभी मैं वही तो कह रहा हूँ, भाई डॉक्टरों के कभी इस तरह से हाथ बंधे नहीं किसी सिचुएशन में आके कहीं पे बिफोर दिस पैंडेमिक। कोई कभी नहीं सोच सकता था कि डॉक्टर सिटिंग इन हिज और हर ओन ओपीडी और आईपीडी विल फील दिस मच हेल्पलेस। हाँ, बहुत सारे वीडियो। दुख की बात है, बट इट इज व्हाट इट इज। क्या कर सकते हैं, एक क्या करे आदमी। डॉक्टर अनुराग जी, इतना प्रिकॉशंस लेने के बाद भी बेटे को दोबारा कोविड घर में बैठे बैठे हो गया। जब मैंने कहा ना कि ये एयरबोर्न डिजीज, तो उसके पैथोजन तो हवा में, मैं इस कमरे में बैठा हूँ, पता नहीं कितने ही घूम रहे होंगे इस टाइम पे। वो फिर बाद में बताना, फिर बात अपनी इम्यूनिटी पे ही आ जाती है कहीं ना कहीं पे उस टाइम। 6 मंथ के बाद दोबारा हो गया। देखो 6 मंथ ही हुआ। उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है? हाँ जी, उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है? नहीं, अभी तो पहली से शुरू होनी है ना। अच्छा 40 वालों की। अच्छा। अभी कहाँ दोबारा, उसने पहले ही वो सिर्फ बॉडी हेक है और हल्की सी गले में खराश है, कुछ भी नहीं है, ना बुखार ना कोई कुछ। ठीक है, ये दैट इज लो टू इंटरमीडिएट सिम्टम्स। अगर उतने ही रहे तो ठीक है, उससे ज्यादा एग्रेवेट ना हो तो अच्छा ही होगा। बाकी टेस्ट करवा लिया, पॉजिटिव ही आया। बॉडी हेक होता है बस शाम को, सेपरेट उसी टाइम कर देना चाहिए। उस दिन डॉक्टर गरेवाल भी तो ये कह रहे थे कि जैसे ही पहले सिम्टम आपको शो हो, कुछ अगला पिछला कुछ नहीं देखना, रूम सेपरेट कर देना। नहीं, रूम तो उसने पहले ही 4-5 दिन लॉक कर लिया था अपने आप को अंदर। डॉक्टर गरेवाल ने उस दिन बात बिल्कुल सही कही थी। हाँ, वो तो अंदर था, उस दिन भी अंदर ही था। बिकॉज जितना टाइम लगाएंगे उसके बाद सेपरेट करने कराने में, उतना
खुद को भी रिस्क पे डालने वाली बात है नहीं कंटामिनेशन। उसको जरा ही बॉडी है हुआ उसने अपने आप को लॉक किया। हम सब मास्क लगा के घर में अंदर बैठे हुए हैं, बड़ा दिक्कत हो रही है भाई। और घर में भी ये भी एक टाइम है जो बीत जाएगा। इससे पहले भी कितनी ही चीजें लोगों ने एक्सपीरियंस करी हैं अपनी लाइफ में। ये और ये बच्चे दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब इंसान ने कोई डिफिकल्टी फेस करी है अपने लाइफ स्पैन में। और जबकि 15 दिन से ऑफिस बंद है, घर ही बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए। अब मैम जो पैथोजन एयरबॉर्न है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें है, घर में है, घर से बाहर है, कहाँ पर है। जो एयरबॉर्न है वो हवा में फ्रीली घूम रहा है, और हवा ऐसा नहीं है घर के अंदर हवा नहीं है, घर के बाहर ही है सिर्फ। और जैसे पहले भी 14 दिन cross any barrier and it can come into the house also, so not a very surprising thing। यहाँ भी यही हाल है सबके। नहीं, जैसे ये हम 14 दिन का कोर्स करते हैं, फ्लू का जो भी एंटीबायोटिक्स बनती होंगी, इसका मतलब खत्म हो जाती है, 6 महीने पीरियड है इनका। तो खत्म तो नहीं होती, बट पोटेंसी उसकी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। वो जैसे मैंने बताया ना कि जिसको है वो व्यक्ति, क्या वो डायबिटिक हैं, क्या वो अस्थमा के पेशेंट हैं, या वो ड्रिंक ज्यादा करते हैं, स्मोक ज्यादा करते हैं, वो ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, इतने वेरिएबल्स हैं बीच में कि मैं आपको गिना भी नहीं सकता। हाँ है। सो इसीलिए इस चीज पे कोई प्रेडिक्शन लगा पाना इज नॉट पॉसिबल जहां इतने वेरिएबल्स हों किसी भी सिचुएशन में। एंड मैंने उस दिन सेशन पे भी यही बात कही थी, और डॉक्टर गरेवाल ने भी बाद में यही बात की। मैंने आई अटेंडेड दैट एंटायर सेशन। मैंने पापा के डिवाइस से लॉग इन करके, मतलब अपना मैनेज नहीं करा था, तो कैमरा और माइक सब ऑफ था, बट मैं स्क्रीन के पीछे बैठा और मैंने पूरा अटेंड किया उनका। एंड डॉक्टर गरेवाल इज लाइक अ मेंटोर टू मी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जो मैंने भी पहले कही थी उनसे पहले, कि किसी भी बीमारी में सिर्फ कोविड की बात नहीं करते, एक छोटा मोटा सर्दी जुकाम या वायरल से लेके बड़े से बड़ा टर्मिनल कैंसर तक, जब तक वो आपके दिमाग में यहाँ पे आपके हावी नहीं होता तब तक आपको कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे कॉलेज में जब मैं 3rd ईयर में था, वी वर स्टडिंग एडवांस मेडिसिन। तो डॉक्टर कक्कड़ हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, अजय कक्कड़ नाम था उनका। वेरी वेरी नाइस गाय, वेरी एनर्जेटिक गाय। अभी तो 70 के थे उस टाइम पे। ही वाज अ प्रोफेसर। एंड उनके पास एक पेशेंट आते थे जिनको टर्मिनल कैंसर था, एंड डॉक्टर्स हैड गिवन हिम 3 months कि भैया आपकी जिंदगी के कुल मिला के 3 महीने बचे हैं, 3 महीने बाद आप ऊपर पहुंच जाएंगे। कहते हैं सर मैंने उसको जितनी ठीक है कीमोथेरेपी चली, रेडिएशन थेरेपी चली, सब कुछ उसका चला, दवाइयां भी चली, वो उसका ट्रीटमेंट के अंदर डॉक्टर कक्कड़ के अंदर ही चल रहा था। तो कहते हैं मैंने उसको कहा कि तुम दवाइयां और सब कुछ तो लेते रहो, बट तुम अपने मन से ना ये ख्याल निकाल दो कि तुम मेरे पास एक पेशेंट के रूप में आते हो। तो उसने कहा सर इजी तो नहीं है, आपके लिए इजी है कहना, आप एंड वो पेशेंट जिसको 3 महीने दिए गए थे वो लगभग 3.5-4 साल जी के गया फिर। तो डॉक्टर्स बड़े हैरान थे कि 3 महीना बोल के भी 3 साल काट लिए इस आदमी ने, चाहे रो पिट के चाहे जैसे भी। नॉट बहुत अच्छे तो नहीं, थोड़ा बहुत तो अप डाउन होता ही रहता है, बट समहाउ ही मैनेज्ड टू लिव फॉर क्लोज टू 3.5 years। तो डॉक्टर कक्कड़ ने जब हमारे लेक्चर में जब हमें उसके बारे में पूरी केस स्टडी बताई, उन्होंने यही कहा कि उसने एंड में इनिशियली ही वाज अ बिट रिलक्टेंट टू थिंग्स कि ये सोचकर बार बार कि मेरे पास तो सिर्फ 3 महीने बचे हैं। उसको जो भी बात कह दो उसके मन में पहला ख्याल ये आता था कि मेरे पास तो सिर्फ 3 महीने बचे हैं। तो वो कहते हैं कि या तो तुम 3 महीने ना अपने आप को कमरे में बंद कर लो बिल्कुल ही और वेट करो मौत के आने का, या फिर यू ट्राई टू लिव योर लाइफ एंड एंजॉय इट जितना आप उस समय कर सको। तो उसने उनकी बात सुनी एंड ही एक्सेप्टेड द लैटर वन एंड ही लिव्ड फॉर 3 years। तो ये भी होती हैं स्टोरीज ऐसी, हमारी प्रैक्टिस में हमें पता नहीं कितनी ही देखने को मिलती हैं।
एंड बाय द टाइम आई चूज टू रिटायर, मुझे तो पता नहीं, मैं तो इसके ऊपर पूरी एक नॉवल लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। अब क्या, मैं तो अभी लिख सकता हूँ, अगर मैं अभी चाहूँ मैं अभी भी लिख सकता हूँ बस अभी टाइम नहीं है मेरे पास। जन्म मृत्यु की भगवान के हाथ में है। डॉक्टर साहब मेरा, मैं अभी नॉवल लिखने बैठ सकता हूँ अगर मेरे पास टाइम होता तो। डॉक्टर अनुराग आपको मेरा केस तो पता ही है। जी जी, और मैं नॉवल का पहला चैप्टर आप पे ही लिखेंगे सर। अगर आप अभी, जिस दिन आपने वॉकर छोड़ दिया और आप स्टिक पे आ गए सर, मैं नेक्स्ट डे रिटायर होने को तैयार हूँ। अगर मतलब इमोहा के जरिए या किसी भी माध्यम से अगर हमने वॉकर छुड़वा दिया ना सर, मैं नेक्स्ट डे खुशी खुशी रिटायर हो जाऊंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो कह ही रखता कि अपने करियर के स्पैन में अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का एक पेशेंट मैं ठीक कर दूं, आई कैन हैप्पीली रिटायर नेक्स्ट डे। मुझे कोई पैसे का लालच नहीं, मुझे कोई ये नहीं कि मुझे ये करना है वो करना है लाइफ में। मैंने जो करना है कर लिया, पेशेंट ठीक, माय वर्क इज डन। गुड लक। चलिए, सो सेशन खत्म करते हैं आज का यहीं पे। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आप सबसे अब हम मिलेंगे कल। सो अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर कहीं पे भी हो, बट प्रेफरेबली घर के बाहर ना ही हो तो ज्यादा अच्छा, घर के अंदर ही रहिए, अपने आप को सेफ रखिए। एंड लाइक आई सेड कि करंटली जो सिनेरियो है बाहर का, नोइंग दैट कोविड इज एन एयरबोर्न डिजीज नाउ, आज से 6 महीना पहले नहीं था, या था भी तो लोगों को पता नहीं था। अब क्योंकि वो बात पता है, लोगों के जहन में बैठ चुकी है, तो इसीलिए अब उसको लेके ना आदमी ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। अच्छा, एक चीज डॉक्टर अनुराग पूछनी थी, कोई कहता है घर से बाहर बालकनी में भी आप मत बैठो बिना मास्क के, हाउ इट इज पॉसिबल? यार सांस ही नहीं ले पाएंगे, कैसे करें? जो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो डिजीज एयरबोर्न है उसके लिए क्या बालकनी, उसके लिए क्या ड्राइंग रूम, उसके लिए क्या किचन और उसके लिए क्या बाथरूम। वो थोड़ा सा ठीक लगे ना, शाम को बाहर बैठे थोड़ी ताजी हवा खाए। देखिए, मैं कह रहा हूँ जिसको जितना रिस्क है वो घर के अंदर भी है, वो घर के बाहर भी है, नाउ दैट इट इज एयरबोर्न। बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल अपने आप को एक कमरे के अंदर कैद करके बैठ जाए, खिड़की दरवाजे सारे बंद करके। थोड़ा बहुत तो अ पर्सन डज नीड फ्रेश एयर, बट एट द सेम टाइम प्रिकॉशंस लेते हुए अपना कंफर्ट या अपनी फिजिकल या मेंटल वेलबींग के चक्कर में जो हमारे आसपास लोग हैं उनकी वेलबींग को खतरे में ना डालें। अब ऐसी बात नहीं कि मैं घर से बाहर नहीं निकलता, मैं घर से बाहर अभी भी निकलता हूँ, मेरे कई काम होते हैं, कई कॉल्स होते हैं, मैं बाहर गार्डन में भी जाता हूँ अपने। ऐसी बात नहीं कि मैंने गार्डन में जाना छोड़ दिया है, मैंने छोड़ा नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई मेक श्योर कि मेरे बाहर जाने या वापस अंदर आने से मेरे घर पे जो बैठे हैं उनको कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। सो व्हेन आई नो दैट इट इज कंप्लीटली सेफ, सिर्फ तभी आके मैं बैठता हूँ वहां पे। अगर नहीं तो आई कैन गो एंड सिट इन माय रूम होल डे। मैं तो बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप इंसान हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आधा घंटा भी बाहर बैठते हैं ना तो सब फ्रेश फील करते हैं। जी जी, बहुत जरूरी भी है वो, बिना उसके भी गुजारा नहीं है किसी का। सो वो कर सकते हैं, बट लाइक आई सेड उसके साथ साथ सारे सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। अपने कंफर्ट लेवल में रहते हुए बाकियों के कंफर्ट लेवल और बाकियों की सेफ्टी को खतरे में ना डालें कोई भी। इफ नथिंग एल्स तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा वो एक फर्ज बनता है। राइट, सो सेशन खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। चलिए, I'll see you all tomorrow. So take care everyone. Bye bye. Have a good day, doctor.